والعلی و اولاد علی بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والسولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکری والغیبة الالہ القائم بامر اللہ. بلندتر صلوات. عزیزان محترم، ماہ محرم کے آغاز سے پہلے ہی ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ مہینہ آئے گا، کب وہ چاند نمودار ہوگا. اسی طرح ہم لوگ پورا سال عزاداری امام حسین کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی اس خوشی کی ابتدا مجلس امام حسین سے کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ہمارے گھروں میں کوئی مرتا ہے یا کوئی بھی ہماری مراد ہوتی ہے تو ہم ابا عبداللہ الحسین سے ہی مانگتے ہیں. لیکن اس ایام عزا میں محرم الحرام میں جو مجالسیں برپا کی جاتی ہیں، اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ جو امام حسین ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. ایک خاص مقصد کے تحت یہ مجالسیں ہوتی ہیں، ایک خاص ہدف ہوتا ہے. ہمیں اس عزاداری میں اپنی روحوں کو بیدار کرنا ہے. ایسا کون سا ہدف ہے؟ کیونکہ ہمیں کربلا کی طرف مسلسل بلایا جاتا ہے. اتنی روایات موجود ہے کہ کربلا کی زیارت پہ جب انسان جاتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. خدا ہم سب کو بار بار کربلا کی زمین پر بلائے. ہمیں اپنے امام کی معرفت کرائی جاتی ہے اس جگہ پر، کیونکہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. بہرحال ہم کالا لباس پہن کے آتے ہیں، اپنے گھروں کو کالے کپڑوں سے آراستہ کرتے ہیں، اپنے علم کو کالا پٹکا پہناتے ہیں. یہ سب چیزیں تو ہماری اس میں آ جاتی ہیں جو ہمارے رسم و رواج ہے. لیکن یہ ضرور ہمیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا رسم و رواج نہ ہو کہ جو کہ اسلام کی نفی کرتا ہو. لیکن اس عزاداری کی جو اصل روح ہے، ہمیں اس کو پتہ کرنا ہے کہ حقیقت کے اتنے مجمع کو گھروں سے نکال کے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت اگر محرم نہیں تھا تو ہم اپنے گھروں میں تھے، لیکن اتنی خلقت کو جمع کر کے اور بتایا گیا ہے کہ اس عزاداری کا ایک اہمیت ہے. اس فرش عزا کا جو ثواب ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو فرشتے اوپر ہے وہ یہ باقاعدہ طور پر روایات میں سننے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کاش ہمیں موقع مل جائے اور ہم امام حسین کی فرش عزا پہ زمین پہ جا سکیں. وہ لوگ کاش کرتے ہیں اس چیز پر کہ کاش ہم لوگ کو ایک ایسا موقع ملے. لیکن ہم لوگوں کو خدا نے وہ موقع نصیب کیا ہے. کیا ہے اس عزاداری میں ایسا؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں ہر چیز کو، جیسے کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ ہم ہر چیز کو مادے کے حساب سے دیکھتے ہیں، پیسوں کے حساب سے تولتے ہیں. حتیٰ کہ آج کل واقعاً اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں میں یہ چیز ہو، لیکن کچھ عزاداریوں میں دیکھا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ مجلس حلیم کی مجلس ہے، بریانی کی مجلس ہے. عزیزان محترم، مجلس ابا عبداللہ الحسین کی ہے. ہمیں امام حسین نے ایک خاص ہدف کے لیے اس عزاداری میں بلایا ہے. ہم لوگوں کے نام چنے گئے ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، روز رات کو سونے سے پہلے سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں چنا اور ہم اس عزاداری میں آئے، ہم اس فرش عزا پر آئے. بہت سی مومنات ہیں کہ جو نہیں آ پاتی، کبھی کبھی کچھ مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال کوشش اگر کی ہے تو مولا ان کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں ہمارے درمیان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سال اس فرش عزا پہ موجود نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ عزادار تھے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس جہان میں عزاداری نہ کر رہے ہوں. لیکن اللہ نے ہمیں ایک زندگی کا موقع دوبارہ دیا کہ ہم آئیں اور اس فرش عزا پر بیٹھیں. لیکن ہمارا اس فرش عزا پر بیٹھنا، کیونکہ جو استعماری لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس محرم میں جتنے بھی محرم گزرے ہیں ان کا ایک حربہ ہوتا تھا کہ مقصد امام حسین سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اختلاف پیدا ہو جائے، شیعہ سنی کا اختلاف، شیعوں میں اختلاف پیدا ہو جائے. لیکن ہمیں ان اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ در حقیقت مقصد کیا ہے ان مجالس میں آنے کا. ہم جو اس مجلس میں آ رہے ہیں، ہمیں
क्या हमारा मकसद है जो अल्लाह ने हमें इधर बुलाया? मकसद इमाम हुसैन की कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मुखालफत कर रहे हों। हम आए इस मजलिस में, नारे लगाए, हम रोए, तबर्रुक लिया और घर चले गए, और हमारी रूह वैसी की वैसी है। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ फजाइले इमाम हुसैन, फजाइले मौला अली सुनकर बस घर चले जाएं और हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आए। जैसा कि मैं पहले इस मजलिस में आई थी, वैसा ही 10वीं मुहर्रम के बाद भी मैं वैसी ही हूँ। तो इसका मतलब है हमने कुछ भी दर्स हासिल नहीं किया जो हुसैन हमसे चाहता था, क्योंकि हुसैन की बारगाह में कोई आए और उसमें तब्दीली ना आए, ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। इमाम तो वो हस्ती है कि अगर कोई उसको इमाम न माने तो भी वो इमाम है। अलबत्ता इमाम को लोगों की जरूरत है, माशरे में आने के लिए, माशरे पर इलाही हुकूमत करने के लिए इमाम को उम्मत की जरूरत है। ये जो अशराए फातिमिया है, अशराए हुसैनी है, ये तमाम अशरे इस चीज की बुनियाद पर है कि हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने जब इस दुनिया को खल्क किया तो सबसे पहला बंदा इस दुनिया में नबी थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद नबूवत चलती रही, 1,24,000 अंबिया आए। लेकिन अगर फर्ज करें, एक दुनियावी मिसाल दूंगी, अगर हम घर में वालिदैन चले जाएं, घर को बच्चों के हवाले छोड़ के जाएंगे? असलन नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको अक्ल और शऊर नहीं है, तो हम जरूर या तो अपने किसी रिश्तेदार को बुलाएंगे या किसी पड़ोस में एक ऐसे शख्स को बुलाएंगे जिसपे हमें भरोसा हो और जिसका हमें पता हो कि ये अक्ल और शऊर रख सकता है, ये वाकईन मेरे घर को उस हिसाब से रखेगा ताकि जब तक मैं वापस आऊं तब तक उसके हवाले मेरा घर हो। तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि अल्लाह नबूवत के बाद खत्म कर दे कि बस जिसका दिल चाहे, जिसने भी आना है वो आए, हुकूमत करे और जनता बने? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हमने अपनी हुकूमत देखी। इस वक्त एक आम शख्स के हाथ में क्या कर दिया उसने पाकिस्तान का हाल, पूरे मुल्क में देख लें। लेकिन जो इलाही हुकूमत है, तभी अल्लाह ने हजरत रसूल खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल को गदीर खुम में एक निज़ाम दिया गया था। ये जो गदीर हम मनाते हैं ये एक निज़ाम है। एक जगह पर मौला अली अलैहिस्सलाम से कुछ सहाबियों ने पूछा, इमाम की खिदमत में आए, कहा मौला आपने पहले क्यों नहीं कबूल की विलायत? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाजू उस वक्त कटे हुए थे। क्या मतलब बाजू का? इमाम फरमाते हैं कि उम्मत इमाम का बाजू होते हैं, यानी उम्मत होती तो इमाम आ जाते। इमाम अली ने एक लंबे अरसे के लिए हुकूमत नहीं की, बिला आखिर जब उनको हुकूमत मिली थी उस वक्त इसीलिए कि कुछ बाजू मौजूद थे मौला अली अलैहिस्सलाम के। उम्मत थोड़ी सी बेदार थी, लेकिन जब उम्मत बेदार नहीं होती तो देखें गदीर बपा हुई। मनकुन तो मौला फहाजा अली मौला कहा गया, और किस शान से कहा है आप सब जानते हैं। मिंबरों का पालान लगाया गया था, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक ऐसी जगह पर रोका कि जो बीच का रास्ता था। जो काफिले आगे बढ़ गए उनको भी बुलाया, जो पीछे थे उनको भी बुलाया, और फिर उस मिंबर पे बाकायदा चढ़े और मौला अली का हाथ बुलंद करके कहा, मनकुन तो मौला फहाजा अली मौला। अगर उस वक्त की उम्मत गदीर को पहचान लेती, अगर वो समझ जाती कि अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, तो ये करबला बपा ना होती। लेकिन चूंकि गदीर को नहीं पहचाना गया, क्योंकि इलाही निजाम को नहीं पहचाना गया, इसीलिए करबला बपा हुई। लेकिन करबला जब से बपा हुई है तब से लेकर आज तक हम लोग भी इसमें शामिल हैं कि अगर हमने इस वक्त करबला को नहीं समझा, अगर हमने करबला से वो इलाही निजाम नहीं लिया, अगर हम इस वक्त इमाम मेहदी की उम्मत नहीं बने, तो अजीजान मोहतरम इसमें हमारा अपना खसारा है। हम सब जानते हैं कि दुनिया के हालात कैसे हो चुके हैं, दुनिया के हालात बहुत खराब हैं। इस दुनिया को निजात देने वाला वो एक आएगा जरूर, और वो मेरा मेहदी है, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, जिसके लिए हम फरियादें कर रहे हैं, हम अल अजल कर रहे हैं। लेकिन कोई और सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो इस दुनिया को निजात से दे सके। निजात देने वाला सिर्फ और सिर्फ जो निजाम है वो इलाही निजाम है। इलाही निजाम में हमें उम्मत बनना है, लेकिन हम उम्मत बने तो कैसे बने?
غدیر गुजर चुकी है, करबला बपा हो चुकी है, लेकिन अब हमें, क्योंकि इमाम मेहदी तो आएंगे, अगर हम पीछे रहते हैं तो हमारे अंदर इसका मतलब है हम उम्मत नहीं बन पाए और हम पीछे रह जाएंगे। इमाम मेहदी का तो ज़हूर हो जाएगा लेकिन हम पीछे रह जाएंगे। हम कैसे बने उम्मत? अजीजान, अपने अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झाके, ये मत देखे कि कौन क्या कर रहा है, खानदानों में क्या बुराइयां हैं कि बगैर पूछे कचे लोगों की चीजें इस्तेमाल कर ली जाती हैं। किसी के घर गए, अब कहने को एक छोटी सी चीज है, जैसे मोबाइल आपको चार्ज करना है, आपके घर में बिजली नहीं थी, किसी और के घर जाके बगैर इजाजत के आपने चार्जिंग शुरू कर दी। अजीजान, ये चोरी है। ये ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें कि हाँ ये थोड़ी सी चीज है। खुदा की मुखालफत आप थोड़ी सी करें या ज्यादा करें, मुखालफत होती है। इसी तरह अगर किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसी चीज है जो किसी के अंदर आपने बुराई देखी, लेकिन अब क्या बातें करें खवातीन, तो एक दूसरे की बुराइयां शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे हम गीबत कर रहे हैं। इसी तरह लोगों में हसद है, अगर पड़ोस में किसी के पास नई चीज देख ली, नया पंखा आ गया है तो फौरन अपने शौहर से फरमाइश की जाती है, देखो उसके पास पंखा आ चुका है, मेरे पास नहीं है। ये वो चीजें हैं कि जो हमें उम्मत बनने नहीं दे रही, क्योंकि इमाम का उम्मती कैसा होता है वो हम सहाबाओं की शक्लों में देख सकते हैं। वो हम ये जितने भी हमारे शहीद हैं इस जमाने के, हम उनकी शक्लों में देख सकते हैं। किताबें पढ़िए, इसीलिए कहती हूँ कि अपने आप को मुंसलिक करें, चाहे इल्म पढ़ के ले, सुन के ले, लेकिन अगर इल्म आएगा तो आपको पता चलेगा कि हम उम्मत कैसे बन सकते हैं। हमारा मकसद इस अज़ादारी में आने का यही है कि जिसने करबला से वाक़अन करबला ली है, कि जिसने वाक़अन इमाम हुसैन का हदफ लिया है, आप देख सकते हैं कि अभी एक ऐसी कौम है तो जिसने डट के मुकाबला किया, हम सबके सामने है कि किस तरह से उसने ऐसे डट के मुकाबला किया है कि हत्ता कि वो खुद कहने को मजबूर हो गए कि हम चाहते हैं कि जंग बंदी हो जाए। जंग बंदी हमारे शिया नहीं कर सकते। पूरी दुनिया जिस एक मुल्क से टकरा रही है, पूरी दुनिया जिस एक मुल्क से डर रही है, लेकिन वो अपने खुद घुटने टिकाकर कह रहा है कि अब जंग बंद कर दो, क्योंकि वो डर चुका है। उसने देख लिया उसका हदफ क्या था कि न्यूक्लियर इनका खत्म हो जाए, जो कि नहीं हुआ। वो समझ रहे थे कि अगर हम एक दफा हमला करेंगे तो पूरा ईरान मलिया मेट हो जाएगा, लेकिन ईरान को आज तक नहीं आई। और उनकी उम्मत को देखिए वो कैसी उम्मत थी, जैसे कि करबला में मौला को छोड़ दिया गया था, लेकिन उस उम्मत ने वाकई हुसैनी बन के दिखाया, उस उम्मत ने वाकई बन के दिखाया। वो जो 72 सहाबा थे वैसा ही बनकर दिखाया कि देखो अगर ये आज भी लेकर आते हैं, हत्ता कि कहा गया था तेहरान खाली कर दिया जाए, ईरान मुसलसल कह रहा था तेहरान खाली कर दो, हम हमले कर देंगे, लेकिन वो ऐसी कौम थी कि वो सड़कों पे निकल आई, हजारों की लाखों में तादाद में निकल आई और उन्होंने वहां पर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए हैं। वो बिल्कुल भी नहीं डरे, उनको था क्यों? क्योंकि वो हुसैन की करबला को जानते थे, उन्होंने हकीकतन करबला ली है हुसैन से। ये होती है कौम कि जो खड़ी हो जाती है। अगर अभी भी अगर फर्ज करें हमारी कौम के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आती है, अज़ीज़ान मोहतरम, हमें पीछे नहीं हटना। हम हुसैन के मानने वाले हैं और हुसैन के मानने वाले पीछे नहीं हटते। इमाम हुसैन को भी यजीद ने कहा था या तो बैअत कर लो या शहीद हो जाओ, तो इमाम ने कहा कि मैं सर तस्लीम खम नहीं करूंगा, मैं शहादत को अपनाऊंगा। यही आप ईरानी कौम में भी देख रहे थे और हमें भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि वो जो आने वाला है वो मेहदी तो आ जाएगा, लेकिन अगर अभी हमने अपने आप को नहीं सुधारा, अपनी जो खानदान की वो है जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, अगर हमने उनको खुद से दूर नहीं किया, इमाम आ जाएंगे लेकिन हम अफसोस में रह जाएंगे, हमारा अपना नुकसान हो जाएगा। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन होगा वही कि जो मेरा अल्लाह चाहता है। मस्तान मोहतरम, ये अय्याम अज़ा है, बस हुसैन का नाम आए और हमारी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। एक बीबी है कि जो दर पे खड़ी होगी और हमारे आंसुओं की तलबगार है कि ये है मेरे हुसैन के चाहने वाले। अज़ीज़ान मोहतरम,
इमाम हुसैन का प्यार, रसूल अल्लाह का प्यार सब जानते हैं कि कैसे रसूल ने अपने सजदों को तुलानी करके दिखाया कि हुसैन क्या है, कैसे रसूल ने अपने खुतबों को छोड़ के दिखाया कि हुसैन क्या है। इमाम रसूल अल्लाह ने जगह जगह पर इमाम हुसैन के बारे में बताया, हत्ता कि मरने से पहले अपनी ही ज़ौजा को खाके करबला देकर गए थे कि जब ये खाक लाल हो जाए तो समझ जाना कि मेरा हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस हज़रात मोहतरम, असल दर्द तो आशूरा के बाद शुरू हुआ था कि जब बड़ी शान और शौकत से मदीने से बीबियां सवार हुई थी उन ऊँटों के ऊपर रात के अंधेरे में, कि जिनके ऊपर चादरें भी थी, बड़ी शान और शौकत के साथ अब्बास उनको ऊँटों पे चढ़ा रहे थे, अली अकबर उनको ऊँटों पे चढ़ा रहे थे। क्या बीबियों ने सोचा होगा कि अब्बास के होते हुए हमारा ये पर्दा लुट जाएगा, अली अकबर के होते हुए हमारे हाथों में कोई रस्सी डाल सकता है। वो छोटे छोटे बच्चे जब अब्बास को देखते थे कहते थे हम पे कोई पानी बंद नहीं कर सकता, अरे हमारे तो अब्बास है मौजूद, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई हम पे पानी को बंद कर दे। लेकिन अगर मोहतरम वो वक्त भी आ गया कि पानी बंद कर दिया गया, हुसैन शहीद कर दिया गया। अगर मोहतरम सोचिए, अगर हमारा बाप मरता है तो हम कैसे रोते हैं, एक आम हालात में उसका इंतकाल होता है। लेकिन अगर मोहतरम मौला सज्जाद ने देखा है बाकायदा कि कासिम भी न रहे, ओनो मोहम्मद भी न रहे, उनके बाबा को किस तरह से बेदर्दी से मारा गया है। मौला सज्जाद से लोग पूछते थे आप क्यों रोते रहते हैं, वो कहते थे कि अरे जिसके सामने 18 यूसुफ मार दिए गए हो वो भला कैसे रोने को छोड़ेगा। मज़ेदार मोहतरम, जब भी गुनाह करे ये सोचा करे वो शहजादी ज़हरा की जिसकी पसलियां टूटी हुई है वो हम लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे पर खड़ी रहेगी। बीबी कहती है ऐ मेरे शियो, जब तक तुम लोग आ नहीं जाते जन्नत में अंदर नहीं जाऊंगी। हम कैसे अपनी बीबी को दरवाजे पर खड़ा रखे। मोहतरम, गुनाह मत किया करे, मेरी बीबी तब तक दरे जन्नत में खड़ी रहेगी जब तक शिया जन्नत में ना आ जाए। अला लानतुल्लाहि अल-कौम अज़-ज़ालिमीन।